So, in the last session, we have discussed about the proportionality of retaining wall, then stability analysis table, this we have prepared, then the full detail figure of retaining wall along with active pressure diagram and the uplift pressure. Then we have checked these three factor of safety, that is overturning, sliding and uplift pressure, and our retaining wall was stable or safe for that condition. Now then after we have discussed the design of stem calculation also, so we have derived with the reinforcement, that is 12 mm diameter at 90 mm center to center, right? So this was our uh, diameter and spacing for main reinforcement. Also we have discussed that what could be the secondary steel and distribution steel. So here, if this is the stem part, right? So from the design we have concluded that this reinforcement is 12 mm diameter, right, and spacing was 90 mm center to center. So this is as per the active pressure diagram moment calculation. We have got this 12 mm diameter and 90 mm center to center spacing. Then after this is the tension reinforcement, because your stem will deflect like this, which is having tension at here and compression at here. So this compression side also you need to provide reinforcement. So that reinforcement again we can provide over here. This is the compression side, right? So these are the reinforcement for compression side. And if you see the length view, if you see the length view over here, so if I can draw this diagram for the length view, if this is the length, right, then this 12 mm diameter bar we are going to provide over here vertically with 90 mm center to center. You are providing throughout the length of the wall, right? Then at this side, other side of the wall, we are going to provide this distribution steel or minimum steel as per slab criteria 0.12 percentage. So that also we have concluded that 10 mm diameter, 140 center to center. So here we have concluded that 10 mm dia at 140 center to center. So this is compression side reinforcement. Now you need to provide the reinforcement throughout the length in horizontal direction. So here this way also you are going to provide the reinforcement as I have shown the PPT for the same. So in this direction, right? So that reinforcement in this figure you can see by dotted. So this is the horizontal reinforcement ये जो यहाँ पे है black color के वो. So this you can see from the front as dotted. So these are the uh, uh, reinforcement in transverse direction, right? So and again it is provided at the tension side as well as in compression. So compression also having the same figure, same reinforcement throughout the length, right? So this reinforcement are also same as minimum requirement. So 10 mm dia at 140 mm center to center. Right. So these are the main reinforcement for the stem. These are the main reinforcement for the stem. Also, I have shown this. This is the case. This yellow color side is the main reinforcement. That is the tension reinforcement.
Yes. So this yellow color is our tension reinforcement where my cursor is, right? Then this yellow color, this side is compression reinforcement, right? And the horizontal reinforcement you can see, yes, this blue color lines are the horizontal reinforcement throughout the length of the wall, right? So this is about the stem main reinforcement. Now one more criteria we need to consider over here is the vertical reinforcement. Here you can easily see that this vertical reinforcement at the tension side where my cursor is moving, and these are the compression reinforcement here. These are the compression reinforcement throughout the length, and you can see this horizontal reinforcement also. Now in this figure you can see that some of the reinforcement are not extended throughout the height. यहाँ पे देखो ये throughout the height यहाँ पे extend नहीं हुआ है. Some bars are curtailed at some point throughout the length. Right. So this is called the curtailment of bar. This is called the curtailment of bar. So that calculation we are going to see now, that what is curtailment of bar and why it is required in the retaining wall. So again I am drawing this retaining wall. Now this retaining wall, and this is the active pressure diagram for the same. If you extend the this line for the height of stem, this one is the active pressure diagram. Now from active pressure diagram you can see that the pressure is maximum at bottom, and as soon as if you are going towards the top the pressure is zero, right? So here you are getting the maximum pressure value because here you are getting the full height of stem. यहाँ पे आपको full height of stem मिलता है, and due to that only and this resultant pressure you are finding the maximum bending moment at this point. आपने जो moment find किया है वो moment is maximum moment, right? Because if you remember this is your cantilever beam. So this cantilever beam with UDL, then you are getting the maximum bending moment at fixed point over here, right? So this is maximum bending moment, bending moment maximum. But if you want you can find the bending moment at this point also, at this point also, right? So as soon as you are going towards the free end, the bending moment is reducing, right? So here also as soon as you are going towards the top side, the bending moment is reducing because this pressure value is reducing. Now if the pressure is reducing, obviously the moment at this point, moment at this point, moment at this point, this all will reduce. And if the moment reduce, the percentage steel requirement will also reduce, right? So it is not necessary that you need to provide the vertical reinforcement throughout the height, same throughout the length. मतलब आप कोई कोई बार को curtail कर सकते हो to make your section economical, right? And for that reason, as the moment is reducing, so requirement of steel at the top point is not that much that is required at the फिक्स पॉइंट. यहाँ पे जितने रिक्वायरमेंट है उतनी यहाँ पे टॉप साइड पे रिक्वायरमेंट नहीं है. Then that's why the reinforcement are not going throughout the height, but some of the reinforcement are curtailed at some point. So कौन से point पे curtail करना है और कैसे करना है, so that we are going to see. तो क्या करना है? So this is called the curtailment of bars in step. अभी curtailment कैसे करना है? Now as per IS 456 you can do only 50% of curtailment at one point, right? तो मतलब only you can do 50% of curtailment, not more than that. So वो कैसे करना है? So this is your
cliff pressure diagram. Sorry, this is your active pressure diagram, right? And this one is your height, right? Now I am just applying, I'm just drawing the reinforcement over here. Suppose this is my full reinforcement, ये मेरा 12 mm डायमीटर का जो बार है वो फुल रेनफोर्समेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट? नाउ आई वांट टू कर्टेल, मुझे बार को कर्टेल करना है. कर्टेल मीन्स यू नीड टू कट द बार, मेक सम राउंड, आई मीन सम एंकरेज, राइट? सो दैट इज कॉल्ड द कर्टेलमेंट ऑफ बार. तो मैं कहाँ करती हूँ कर्टेलमेंट? मैं जस्ट अज्यूम करती हूँ दैट आई विल कर्टेल माई बार ओवर हियर, यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा बार है कर्टेल किया हुआ, मतलब जो रेनफोर्समेंट, सपोज यहाँ से 4 रेनफोर्समेंट जा रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो मुझे 2 बार को कर्टेल करना है. तो कौन से 2 बार मैं कर सकती हूँ? एज आई डिस्कस इन design one part also, that you can curtail only the inner reinforcement, not the outer one. तो अगर मुझे 2 बार को कर्टेल करना है तो मैं क्या करती हूँ? मैं यहाँ से उसको कर्टेल करती हूँ, कर्टेल करके ऐसे उसको थोड़ा एंकर देना है. तो ये बार यहाँ से एक्सटेंड नहीं होगा, ये बार यहाँ से एक्सटेंड नहीं होगा, राइट? तो ये है आपका कर्टेलमेंट. कर्टेल बार मतलब ये बार यहाँ से कट हो गया, अभी वो यहाँ से एक्सटेंड नहीं हो रहा है, ठीक है? तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, जो हमारा 12 mm डायामीटर बार है, दिस इज योर 12 mm डायामीटर बार. तो जो 12 mm डायामीटर बार 90 mm डिस्टेंस पे जो थ्रू आउट द लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं, सपोज ये मैं आपका ये व्यू बता रहा हूँ, लेंथ व्यू, ठीक है? तो ये लेंथ व्यू में कैसे है बार आपके, ये ऑरेंज कलर के बार थ्रू आउट द, सपोज ये थ्रू आउट द हाइट है, तो थ्रू आउट द हाइट ये बार है 90 mm के डिस्टेंस पे थ्रू आउट द लेंथ. ये एक्चुअली ये है आपकी डिज़ाइन, ठीक है? अभी मुझे इकोनॉमी डिज़ाइन बनानी है, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम, दिस इज योर 90 mm डिस्टेंस, राइट? और ये है आपके 12 mm के बार. अभी मुझे कर्टेल करना है. कर्टेल करना है मतलब ये जो थ्रू आउट द हाइट है, ये जो मेरी हाइट है, ये है सपोज ये हाइट ऑफ स्टेम 4.75 मीटर, ठीक है? तो ये हाइट पे थ्रू आउट द हाइट है मेरा. अभी ये हाइट को मैं डिनोट करती हूँ H2, फ्रॉम टॉप टू ये स्टेम तक की हाइट को मैं नोट करती हूँ H2, राइट? सो दिस इज माई H2, ये है मेरा H2 हाइट. यहाँ से अगर मैं देखने जाऊँ तो यहाँ से H2 क्या होगा, ये यहाँ 12 mm में यहाँ से रब कर देती हूँ, आई रिक्वायर्ड सम स्पेस टू राइट, राइट? तो मेरा H2 क्या है, यहाँ से लेके H2, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज माई H2. और वो ही पॉइंट से मैं H1 लिखती हूँ. तो H1 क्या है मेरा, जहां मेरा बार को मैंने कर्टाइल करके छोड़ दिया है, राइट? तो ये कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, सपोज ये पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं बार को कर्टेल कर लूंगी, ठीक है? तो दिस इज माय H1. ये जो ब्लैक कलर का डॉट है, ये फिगर में मेरा H1 है, मतलब बार मैं यहाँ से वहां, यहाँ से मैं कर्टेल कर देती हूँ. सो दिस इज माय H1 हाइट, ठीक है? अभी क्या होता है, अभी आई वॉन्ट टू फाइंड कि मैं कौन सी हाइट पे इसको कर्टेल कर सकती हूँ, कौन सी हाइट पे आई कैन कर्टेल, राइट? सो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, दैट H1 बाय H2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, H1 बाय H2 होल स्क्वायर. अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है, H1 हाइट. तो H1 जो हाइट है वहाँ पे आप कितने मैक्सिमम कितने परसेंटेज बार को
कर्टेल कर सकते हो. सो मैक्सिमम यू कैन कर्टेल 50% ऑफ. 50% बार को आप कर्टेल कर सकते हो. मतलब अगर 4 बार है तो आप 2 बार को कर्टेल कर सकते हो. 2 बार यू कैन कर्टेल, नॉट मोर देन दैट, राइट. तो मैक्सिमम लिमिट इज 50%. तो H1 पे आई कैन कर्टेल 50% ऑफ बार. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 50%. या यू कैन कंसिडर दैट H1 पे 50% बार होंगे और जो H2 हाइट है वो थ्रू आउट द हाइट कितने बार होते हैं? 100%. तो H2 इज माई 100% बार. ठीक है. नाउ नाउ दिस H1 हाइट इज अननोन. ये H1 की हाइट अननोन है, बट दिस H2 हाइट यू नो, राइट. सो H1 को अननोन रखो. H2 की हाइट 4.75, 4.75 होल स्क्वायर. और ये 50 डिवाइड बाई 100, सो 1/2. सो इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट H1 हाइट. आपको वो हाइट मिलेगी टॉप से जहां से आप बार को तोड़ सकते हो. सो दैट हाइट इज 3.36 मीटर. 3.36 मीटर. तो ये आपको मिली 3.36 मीटर. मतलब H1 हाइट आप 3.36 मीटर होती है, बराबर. तो अभी आपको ये मिला है थियोरेटिकल, इसको बोलते हैं थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट. ये है आपका थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट. मतलब कि ये हाइट ऊपर से अगर देखोगे, यहाँ से देखना चाहते हो तो 4.75 माइनस 3.36, 4.75, 4.75 माइनस 3.36, तो 1.39. मतलब यहाँ से लेके 1.39 तक आपका बार कट होगा. मतलब 1.39 में अगर बॉटम से देखती हूँ तो 3.636 टॉप से, तो यहाँ से तो नीचे से 1.39 तक का बार आपका जाएगा. उसके बाद वो कट हो जाएगा. ये फिगर में जैसे ये बार 1.39 तक ऊपर गया वहां से, उसके बाद वो कट हो गया. लेकिन दिस पॉइंट इज नोन एज थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट, जो हमने इक्वेशन से लिया है थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट. बट वी रिक्वायर्ड एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट. एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट क्या होता है कि ये थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट आपको क्या देता है कि ये बार के बाद आप बार को तोड़ सकते हो. फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन कर्टेल और कट द रेनफोर्समेंट. बट एज पर कोडल प्रोविजन जब भी आप बार को कर्टेल करते हो वो पॉइंट के बाद आपको वो बार को थोड़ी एंकरेज लेंथ देनी है. एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ. आपको उसके वो बार को development length देनी है. Now what is development length? Development length is the length which is provided to strengthen the junction point or to strengthen the curtailment of bar. तो वो बार आपको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो अगर ये जो ब्लू कलर का पॉइंट है मेरा, अगर ये मेरा ब्लू कलर का पॉइंट थियोरेटिकल कट ऑफ है, तो मेरा जो एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट है मुझे फाइंड करना है एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट. तो मैं एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड करूंगी? बाय एडिंग द डेवलपमेंट लेंथ. मतलब ये तो एक थियोरेटिकल है लेकिन उसको थोड़ा और लेंथ देना है सो दैट इट वोंट ब्रेक और इट वोंट क्रिएट द स्ट्रेसेस एट द कट ऑफ रीजन. जहाँ पे बार आप कट करते हो वो रीजन पे स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होता है. तो थियोरेटिकल कट ऑफ को ही आपका फाइनल पॉइंट कंसीडर ना करते हुए थोड़ी बार को एक्सटेंड करना है. मतलब अगर कोई आपने मिस्टेक किया है, इफ एनी एडिशनल स्ट्रेस कम, तो ये थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट से भी थोड़ा ज़्यादा आपने बार प्रोवाइड किया है, लेंथ प्रोवाइड किया है, सो इट वोंट ब्रेक एट दैट पॉइंट. सो ये जो ब्लू कलर है ये अगर मेरा थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट है, then your actual cutoff point will be somewhat higher than that, and distance between these two is your development length. आपने extend किया है and this development length notation is LD, development length LD. ठीक है. तो जो भी आपका ये पॉइंट है वहां से आपको
डेवलपमेंट लेंथ जितना एक्सटेंड करना है, मतलब ये 1.39 इज योर थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट फ्रॉम बॉटम, ये है फ्रॉम टॉप, 3.36 इज फ्रॉम टॉप और ये है एट बॉटम। तो यहाँ से ये पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट पे, और डिस्टेंस बिटवीन दिस टू विल बी योर डेवलपमेंट लेंथ। अभी डेवलपमेंट लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, for development length IS 456 is also having equation, and just I am showing that equation in SP16, so that will be easy for you to direct get the take the value from SP16. So this is the equation for development length, ये है equation development length का, ठीक है। So LD is equal to 5 sigma s upon 4 tau BD. Now this phi is diameter of bar, जो बार को आप कर्टेल करते हैं वो डायमीटर। सिग्मा एस इज द स्ट्रेस इन द बार, सिग्मा एस इज द स्ट्रेस इन द बार, तो वो क्या लेना है आपको 0.87 F5, तो वो स्ट्रेस लेना है आपको 0.87 F5। देन टाउ बी डी, व्हाट इज दिस टाउ बी डी, टाउ बी डी इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस गिवन इन 25.2.1.1 IS 456. This is called the bond stress. Why you require bond stress? Because whenever whenever you are providing development length at the junction or at the corner, the bond stress will give the bonding between the reinforcement and concrete at that junction or at the corner point. तो ये जो डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वी आर गिविंग द एडिशनल स्ट्रेस और एडिशनल बॉन्ड, एडिशनल स्ट्रेंथ टू द जंक्शन पार्ट, बीम कॉलम का जंक्शन हो या बीम बीम का जंक्शन हो, कॉलम कॉलम का जंक्शन हो, स्लैब बीम स्लैब कॉलम का जंक्शन हो। So at that point, all the way we are going to extend our reinforcement bar into the supporting element, so that जो बार आपने एक एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट में जा रहा है तो वो पूरा प्रॉपर बॉन्डिंग हो। So that is called the development length. तो ये है 25.2.1.1, तो आपको यहाँ से 25.2.1.1 एक टेबल है, फ्रॉम दैट टेबल दिस इज द टेबल बॉन्ड स्ट्रेस का, राइट। तो डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिस बॉन्ड स्ट्रेस इज calculated, right? So if it is M20, so design bond stress tau BD is 1.2 Newton per mm square, right? So this development length will provide the bonding between the concrete and steel, क्योंकि steel को आप extend करते हो एक element से दूसरे element में और वहां पे कंक्रीटिंग होता है, तो जो स्टील एक्सटेंड हुआ है और जो कंक्रीटिंग हुआ है उन दोनों के बीच का ग्रिपिंग के लिए, बॉन्डिंग के लिए दिस फुल कैलकुलेशन इज टू बी डन। अभी यहाँ पे लिखा है एंड दिस all values 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, this is for plain bars. Plain bars means mild steel bar, Fe250 के लिए ये वैल्यू दी है। बट इफ योर बार इज HYSD बार, तो यहाँ पे नीचे लिखा है दैट फॉर डिफॉर्म बार दिस वैल्यू शैल इंक्रीज बाय 60%, मतलब 60% आप ये वैल्यू को इंक्रीज करना है इफ यू हैव Fe415। सो अगर 1.2 M20 के लिए 1.2 है, बट दिस इज फॉर Fe250, अगर Fe415 के लिए चाहिए तो ये 1.2 और उसको आप 60% इंक्रीज करके जो वैल्यू आती है दैट वैल्यू विल बी योर bond stress. So this is your MCQ kind of question where you may be asked that for grade M25 what will be the bond stress for mild steel reinforcement or for HYSD reinforcement. So from this figure, from this value, you can calculate what will be the bond stress for different grade of concrete. Right. Now this table is for tension reinforcement. Here it is mentioned that bars in tension, right? So those reinforcement which are provided at the tension side, अगर ये tension side पे provide करते हैं reinforcement तो ही आप then for that
दिस आर द वैल्यू 1.2, ये सब डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए. बट इफ यू आर फाइंडिंग फॉर कंप्रेशन, सो फॉर बार्स इन कंप्रेशन, मतलब जब हम ये यहाँ पे फाइंड करेंगे ये रेनफोर्समेंट के लिए डेवलपमेंट लेंथ, देन फॉर दैट कंडीशन the value of bond stress bars in tension cell increase by 25%. मतलब कि अगर आपका प्लेन बार है और आपका कंप्रेशन का रेनफोर्समेंट तो है, तो फॉर M20 ये 1.2 प्लस उसका 25% उसको ऐड करो, दैट विल बी योर डेवलपमेंट लेंथ फॉर द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट. ठीक है. अगर आपका HYSD बार है और कंप्रेशन बार है तो क्या होगा, 1.2 करो प्लस 60% उसका 1.2 करो प्लस 25% उसका 1.2 करो. सो वॉट एवर वैल्यू यू विल गेट, दैट विल बी डेवलपमेंट लेंथ फॉर द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट. ठीक है. तो अगर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट HYSD है, देन यू नीड टू add this 60% also and this 25% also. अगर माइल्ड स्टील है सो और कंप्रेशन है तो 1.2 प्लस 25%. ठीक है. So this way you can find the bond stress and you can find the development level. Now here in this SP16 direct tables are given. Direct tables are given and from that figure you can get the yes, you can get the value. Now see over here, this is the anchorage value of hook and bend, right? So आपका बार यहाँ से यहाँ तक का होता है, इतना होता है. ठीक है. उसके बाद उसको आपको एंकरेज देना है. तो वो कैसे देना है एंकरेज? एंकरेज मतलब थोड़ा एडिशनल लेंथ देना है आपको, उसको तो प्रॉपर स्ट्रेंथ देना है. तो वो क्या होता है, दिस एंकरेज यू कैन प्रोवाइड बाय हुक, ये स्टैंडर्ड हुक और 90 डिग्री बेंड. तो स्टैंडर्ड हुक कैसा होता है, इतना होता है, यहाँ तक का आपका बार है, उसके बाद इतना ये हुक जैसा प्रोवाइड करो, ये इतना पूरा आपने, आपको जो ये राउंड दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो उसको बोलते हैं हुक. और 90 डिग्री बेंड क्या होता है, यहाँ तक का तो आपका रेनफोर्समेंट है, यहाँ से 90 डिग्री एंगल पे आपको बार को बेंड करना है और यहाँ पे ये बेंडिंग होगा. ठीक है. तो ये कितना बेंडिंग होता है, कितना रेडियस पे होता है, तो K/5. और कितना लेंथ है आपका जो बेंड हुआ है, तो K+1 × 5. और बेंड होने के बाद कितना एक्सटेंड करना है वो बार को वर्टिकली, तो 4 डाया मिनिमम. ठीक है. सेम वे अगर हुक है तो हुक में ये कितना उसका डायमीटर लेना है, सो K5. K इज द कांस्टेंट एंड 5 इज द डायमीटर. फिर ये कितना होना चाहिए, ये लेंथ, तो K+1 5. और ये एक्सटेंड, ये कर्व होने के बाद कितना थोड़ा एक्सटेंड, क्योंकि कर्व होने के बाद आप बार को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, राइट? सो यू नीड टू हैव सम प्रॉपर straight part, so that straight part is 4-5 minimum. ठीक है. तो ये कैलकुलेशन विल डू इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन वेरी केयरफुली. राइट नाउ दिस एंकरेज वैल्यू, ये जो पूरा आपने ये यहाँ तक का रेनफोर्समेंट है आपका, उसके बाद का ये जो वैल्यू है, इसका टोटल जो वैल्यू आपको फाइंड करना है कि ये कितना लेंथ होगा, तो वो आपको मिलेगा ये टेबल में से. मतलब कि अगर आपका 8 mm का बार है, तो 8 mm का बार अगर आप हुक प्रोवाइड करते हो तो स्ट्रेट पोर्शन के बाद वो 12.8 सेंटीमीटर जितना एक्सटेंड होगा. 12.8 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मेरा कर्सर जहाँ पे घूम रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो 12.8 सेंटीमीटर होगा. और सेम वे अगर आपने 90 डिग्री बेंड किया है तो वो 6.4 सेंटीमीटर होगा. मतलब यहाँ तक का तो आपका स्ट्रेट बार है. स्ट्रेट बार के बाद का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इंक्लूडिंग दिस कर्वेचर, दैट विल बी 6.4 सेंटीमीटर. ठीक है. सेम वे 10 mm, सेम वे 12 mm, सेम वे 16 mm, ऑल टुगेदर यू विल गेट द वैल्यू फ्रॉम दिस टेबल. ठीक है. अभी
आपको डेवलपमेंट लेंथ फाइंड करने के लिए यू हैव दिस टेबल नंबर 64। आप टेबल नंबर 64 में से डायरेक्ट डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो यहाँ पे फाइंड किया है ना, जो ये इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन में से में वैल्यू पुट करो तो भी आपको सेम आंसर आएगा, और अगर आप डायरेक्ट ये टेबल में से लोगे तो भी सेम आएगा। विल डू दैट कैलकुलेशन ऑल्सो। सपोज हम पहले इक्वेशन से करते हैं। सो व्हाट इज आवर इक्वेशन? डेवलपमेंट लेंथ इक्वेशन इज 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। 5 का मतलब क्या है? डायामीटर, टेंशन का बार, हम टेंशन के लिए कर रहे हैं, हमारा डायामीटर है 12 mm। सिग्मा एस इज 0.87 एफ वाई हमारा है 415, सो 0.87 इंटू 415 डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी। अभी टाउ बी डी क्या है? एज आई हैव एक्सप्लेन, टाउ बी डी ये बॉन्ड स्ट्रेस हमारा है एच वाई एस डी बार, ये प्लेन बार के लिए 1.2 है, सो 1.2 और उसका 60% आपको इंक्रीज करना है, 60% इंक्रीज करना है, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1.92। 1.2 प्लस 1.2 का 60% करोगे तो 0.72 होगा, सो 1.2 प्लस 0.72, सो 1.92। सो हमारा जो टाउ बी डी का वैल्यू है वो होगा 1.92। ठीक है, तो हमारा एल डी लेंथ बाय दिस कैलकुलेशन विल बी 564.14 और ये क्या होगा हमारा mm में। सो 564 mm इज माय डेवलपमेंट लेंथ, मतलब 1.39 के बाद मुझे जो एक्सटेंड करना है वो कितना करना है? 564.14 mm में है, आपको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका हो जाएगा 0.564 मीटर, तो उतना आपको एक्सटेंड करना है। अभी मैं आपको सेम चीज SP16 में अगर दिखाऊं तो ये है, दिस इज टेबल नंबर 64। नाउ दिस टेबल नंबर 64 इज फॉर प्लेन बार। ठीक है, तो प्लेन बार अगर माइल स्टील का कैलकुलेशन करते हो तो आपको टेबल नंबर 64 में देखना है। अगर आप HYSD का करते हो देन यू नीड टू सी टेबल नंबर 65। टेबल नंबर 65 उसमें भी अगर FE415 है तो ये है, अगर FE500 है तो दूसरा टेबल नंबर 66 है। ठीक है, नाउ उसमें कैसे देखना है? दिस आर द बार डायामीटर एज पर योर चॉइस, एज पर योर डिजाइन यू कैन कंसीडर। फिर ये जो टेबल है दिस इज फॉर टेंशन बार एंड दिस वन इज फॉर कंप्रेशन बार। अगर आप टेंशन बार का करते हो तो आपको यहाँ पे देखना है, ऑल दिस फिगर्स आर इन सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है, दिस ऑल फील्ड वैल्यूज आर इन सेंटीमीटर। अभी डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, हमारा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है M20 और हमारा डायामीटर है 12, सो M20 एंड diameter 12, see this value 56.4, it is written over here, this is 56.4 centimeter, so mm में करोगे तो 564 mm। so from this table you can directly get the same value as per this table, as per this equation। मतलब either you can use this equation or directly you can get the value of development length from this table। अगर compression के लिए कर रहे हो तो compression के लिए भी same this way you can see the you can find the development length। ठीक है, तो here this is my LD 564 mm। तो मुझे क्या करना है, मेरा जो एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट है तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, जैसे आई एम रिमूविंग दिस पार्ट, तो मेरा एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट, तो एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट क्या होगा मेरा? फ्रॉम, मैं यहाँ से लिखती हूँ बॉटम से कर देती हूँ। ठीक है, सो दैट विल बी इजी फॉर, तो मेरा थियोरेटिकल कट ऑफ पॉइंट क्या है? 3.36। तो ये 3.36 मीटर में मुझे LD लेंथ को ऐड कर देना है, राइट। सो 3.36 प्लस मेरा डेवलपमेंट लेंथ क्या है? 564, तो होगा मेरा 0.564, तो 3.36,
सो 3.92 मीटर। ठीक है, तो दिस 3.92 मीटर इज माय एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट, दिस इज माय एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट। तो यहां से लेके यहां तक का ये है मेरा कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, सो इन दिस पीपीटी ऑल्सो यू कैन सी 2.74 फ्रॉम टॉप, सो 4.75 माइनस 2.74 करोगे, 4.75 है हमारा, यस 2.74, सॉरी फ्रॉम बॉटम से करना है तो यहाँ पे ये वैल्यू 3.36 नहीं आएगी, बॉटम से कर रहे हो ना, 3.36 इज फ्रॉम द टॉप, तो अगर बॉटम से कर रहे हो तो हमारा वैल्यू है 1.39, सो 1.39, सो 1.39 प्लस 0.564, सो 1.95, ये बॉटम से है, दिस 1.95 इज फ्रॉम बॉटम, और ये जो वैल्यू है 2.74 फ्रॉम टॉप, सो 4.75 माइनस 2.74 करोगे तो 2 या 1.9495 दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, सो आइदर दिस इज फ्रॉम टॉप और फ्रॉम दिस बॉटम। तो उसके बाद उसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट बार को कट ऑफ करेंगे, ऑल्टरनेट बार को कट ऑफ करेंगे। दैट मीन्स अगर ये फिगर में मैं इतना पोर्शन रब कर देती हूँ एंड अगेन आई एम ड्रॉइंग द लेंथ व्यू फिगर, तो अगर ये मेरा लेंथ है, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट मैं क्या करूँगी, फर्स्ट आई विल पुट द स्ट्रेट बार थ्रू आउट द हाइट, ये मेरा हाइट है, दिस इज माई 4.75। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट 12 mm का बार है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, आई विल कट ऑफ माई सेकंड बार, सेकंड बार को मैं कट कर देती हूँ बॉटम से 1.95 डिस्टेंस पे, तो दिस इज माई 1.95, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1.95, ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से रखती हूँ मेरा फुल बार, ऑल्टरनेट कट ऑफ करती हूँ, उसके बाद मैं फिर से रखूँगी मेरा ये बार, उसके बाद अगेन आई एम टेकिंग द फुल बार, again I am just cutting my bar like this, so like this throughout the length आपका बार हो जाएगा कर्टेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 90 mm, यहाँ से पूरा डिस्टेंस 90 mm हो जाएगा, और देखने जाओ तो ये और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 180 mm। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इकोनॉमी हो गया कि अगर आप पूरा स्ट्रेट बार थ्रू आउट द हाइट रखते तो आपका रेनफोर्समेंट ज़्यादा जाता, बट यहाँ पे आपने कर्टेल कर दिया है तो आपका रेनफोर्समेंट रिड्यूस हुआ है, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन कर्टेल योर बार, दिस इज कॉल्ड द कर्टेलमेंट ऑफ बार। और उसके बाद मेन फिगर में आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखानी हो तो दिखाओ, यहाँ पे एल डी लेंथ रखो, बट आपका मेन रेनफोर्समेंट कट कहाँ पे होगा, यहाँ पे, राइट। अभी अभी एक्चुअली आपने डिजाइन कौन सा किया है, आपने डिजाइन कौन सा किया है, आपने स्टेम का डिजाइन किया, तो स्टेम तो यहाँ तक का ही है, ये है ना, यहाँ पे यहाँ तक का स्टेम है, तो आपका एक्चुअली बार क्या होगा, टॉप से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, बट कोई बार को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, राइट, फॉर द सेफ्टी कंडीशंस, फॉर द स्ट्रेस डेवलपमेंट। तो आपको क्या करना है, जो भी एक एलिमेंट है उसके रेनफोर्समेंट दूसरे एलिमेंट में एंकर्ड होने चाहिए, एंकर्ड होने चाहिए, दूसरे में एंकर्ड होने चाहिए। तो वो कैसे एंकर्ड होने चाहिए, बाय प्रोवाइडिंग एंकरेज लेंथ,
विथ डेवलपमेंट लेंथ, इंकरेज विथ डेवलपमेंट लेंथ। तो क्या करना है, अभी ये बार को, ये जो ऑरेंज कलर के बार है इसमें, उसको यहाँ तक नहीं बट उसको एक्सटेंड करके आपको ये स्लैब में लेके जाना है, ऐसे स्लैब में लेके जाना है। कितना लेके जाना है, कितना लेके जाना है, तो एटलीस्ट एल डी लेंथ, कितना लेके जाना है, एटलीस्ट एल डी लेंथ। तो एल डी लेंथ अभी हमने कैलकुलेट किया 12 mm डायामीटर टेंशन इन्फोर्समेंट के लिए, दैट इज 564 mm। अभी ये कैलकुलेशन केयरफुली देखना कि कैसे करती हूँ मैं। दिस इज योर 450, ये है आपका 450 mm कैपिटल डी थिकनेस ऑफ बेस लेंथ। आपको एल डी लेंथ है 564, मतलब कि ये जंक्शन के बाद, स्टेम के बाद जो स्लैब में जा रहा है ये ब्लू कलर का रेनफोर्समेंट, तो वो ब्लू कलर का रेनफोर्समेंट कितनी लेंथ का होना चाहिए, 564 mm। ठीक है, अभी आपका तो ये थिकनेस है 450 mm। अभी ये 450 mm थिकनेस में कितना अवेलेबल डिस्टेंस है आपके पास, तो मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे आपका स्लैब का रेनफोर्समेंट आएगा टेंशन वाला, टेंशन यहाँ से टेंशन का, ठीक है, मतलब बॉटम रेनफोर्समेंट आएगा, उसके ऊपर आपका टॉप के रेनफोर्समेंट भी आएगा, बिकॉज स्लैब है तो दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट होंगे, तो ये भी रेनफोर्समेंट होगा। ठीक है, तो अवेलेबल जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो बार एक्सटेंड करोगे वो बार कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, इसके ऊपर तक जा सकता है ऐसे। ठीक है, तो अवेलेबल डिस्टेंस कितना हुआ, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 450 मेरा टोटल डेप्थ है, उसमें से 50 मैं क्लियर कवर माइनस कर देती हूँ, ये क्लियर कवर। उसके बाद ये बार का डायामीटर मैं अभी अज्यूम करती हूँ कि सपोज 12 mm में लूँगी, उसके ऊपर के जो बार उसको भी शायद मैं 12 mm लूँगी, तो द अवेलेबल डिस्टेंस फॉर मी इज 376। अवेलेबल डिस्टेंस है मेरा 376, और मुझे तो एक्सटेंड करने हैं मेरे बार को 564। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो ये जो बार एक्सटेंड हम कर रहे हैं वो बार सिर्फ स्ट्रेट एक्सटेंड नहीं होगा, बट ये स्ट्रेट होने के बाद उसको, स्ट्रेट होने के बाद थोड़ा स्ट्रेट होगा और उसके बाद वो ऐसे एक्सटेंड होगा। ठीक है, ये थोड़ा फिगर टेढ़ा आया मेरा, तो ऐसा एक्सटेंड होगा। तो कितना स्ट्रेट पोर्शन होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, स्ट्रेट पोर्शन जितना अवेलेबल है वो, सो 564 माइनस 376, तो 188। सो ये 188 जितना तो एक्सटेंड होगा मेरा, 188 जितना मेरा एक्सटेंड होगा। मतलब अगर मैं ये सब सेपरेट फिगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये बार है मेरा, ठीक है, यहाँ ऐसे कर्व होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है मेरा ये 188 है, जहाँ तक स्ट्रेट पोर्शन है वो 188 है। ठीक है, अभी आप जो प्रोवाइड करोगे एंकरेज, वो एंकरेज प्रोवाइड करोगे 90 डिग्री बेंड, 90 डिग्री बेंड, यहाँ से ये 90 डिग्री का बेंड करोगे। ठीक है, तो ये जो बेंड होगा इतने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये एक स्ट्रेट पोर्शन, ये यहाँ ये पूरा बेंड है। ठीक है, तो वो कितना होगा, अगर 90 डिग्री करते हो तो यहाँ से फिर से आपको SP16 में ये टेबल में जाना है। ये है आपका 90 डिग्री बेंड और आपका डायामीटर है 12 mm। सो फॉर 12 mm 90 डिग्री बेंड इज 9.6 सेंटीमीटर, मतलब 96 mm। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका हो गया है 96 mm।
ठीक है, आपको कितना आपको एक्चुअली कितनी लेंथ चाहिए 564, तो अभी कितनी हुई है आपकी 188 प्लस 96, तो 284 हो गई। उसमें से 564 मतलब उसके बाद जो ये एक्सटेंड होगा, ये एक्सटेंड लेंथ होगी आपकी 280 mm। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 188 प्लस 96 प्लस 280, तो आपको ये 564 मिल जाएगा। मतलब यहाँ तक आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका इंकरेज डेवलपमेंट लेंथ होगा 564 mm। तो आपको ये 564 mm यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये फिगर में आपको लिखना है तो डायरेक्ट यू कैन राइट लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरा 564। और 564 आएगा कैसे, 564 आएगा कैसे, 188 जो स्ट्रेट अवेलेबल डिस्टेंस है, कहाँ से मिला आपको 188, ये 564 चाहिए, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम द बेस स्लैब इज 376, सो 564 माइनस 376, सो 188। उसके बाद आप बार को बेंड करोगे तो उसका लेंथ डिफरेंट होगा। अगर स्ट्रेट बार है उसका लेंथ, और बेंड करने के बाद उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट इज 96 mm। अगेन यू कैन टेक फ्रॉम SP16, यहाँ से आपको लेना है, एंड देन आफ्टर द रिमेनिंग पोर्शन यू कैन कैलकुलेट टू गेट द वैल्यू ऑफ 564। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट लेंथ। सो इन पीपीटी दिस इज योर कर्टाइलमेंट बार, जो हमने कर्टाइल किया वो, राइट। दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ, वो कैसे प्रोवाइड किया, देखो ये रेड कलर से डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया है अबाउट दिस पॉइंट, बिकॉज बॉटम में बेस स्लैब होगा, बेस स्लैब के रेनफोर्समेंट टेंशन एंड द डायरेक्शन रेनफोर्समेंट विल बी ऑल्सो देयर। ठीक है, उसके बाद ये है सेकेंडरी स्टील फॉर स्टेम एट फ्रंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, वो भी मैं हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, दैट यू नीड टू प्रोवाइड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ऑल्सो एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन एनफोर्समेंट ऑल्सो। दोनों कितने प्रोवाइड करने हैं, सेम वे 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया। सो दिस वे यू कैन फाइंड और यू कैन ड्रॉ द डिटेलिंग फॉर द स्टेम। ये अभी मैंने ये जो ड्रॉ किया है, इसमें अगर मैं ड्रॉ करूँ बाकी का रिमेनिंग फिगर, देन एल डी लेंथ निकाल देती हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एल डी लेंथ। नाउ हियर ये है आपका कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट भी आपका थोड़ा एंकर होगा यहाँ से, उसका कैलकुलेशन सेम वे जो अभी मैंने टेंशन क्या किया वैसे यू कैन डू। ठीक है, और आपको प्रोवाइड करने हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट टेंशन में भी एंड कंप्रेशन में भी। सो दिस आर द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। उसका जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर स्पेसिंग पे आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है दैट दिस इज, ये जो है आपका this is your 12 mm diameter at 90 mm सेंटर टू सेंटर, और यहाँ पे ये जो रेनफोर्समेंट है ये भी है 12 mm डायमीटर। ये जो बार है वो होगा 180 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, फिर ये रेनफोर्समेंट येलो कलर के दोनों, और ये दिस ऑल आर 10 mm डायमीटर 140 mm center to center. So this figure is for stem reinforcement figure, and one more part is remain, that is check for shear. Now this check for shear, as
if you have if this is your cantilever beam, right, then the maximum shear will be at this point. So for stem also, if this is stem and this is your fixed point, then for stem the maximum shear will be at this junction, यहाँ पर ही आएगा. तो वो कितना आएगा shear का वैल्यू डिपेंड ऑन दिस एक्टिव प्रेशर डायग्राम. तो यहाँ पे उसका वैल्यू है K गामा इंटू H. ठीक है. और यहाँ पे उसका है रिजल्टेंट प्रेशर. सो वॉट एवर इज द रिजल्टेंट प्रेशर PA इज इक्वल टू 1/2 K गामा इंटू H स्क्वायर. तो 1/2 इंटू 0.33, गामा इज 18, H इज 4.75 स्क्वायर. तो आपको ये जो फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स आपको मिलेगा 67.68 जो हमने आगे फाइंड किया हुआ है. ठीक है, मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमारा यहाँ पे रिटेनिंग वॉल में एक्टिव प्रेशर है. उसके बाद उसको फैक्टर में कन्वर्ट करो. तो फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स इंटू 1.7 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर. तो आपको ये मिल जाएगा शेयर फोर्स की वैल्यू 101.52 किलो न्यूटन. उसके बाद सिंपल जो हम शेयर का कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, दैट वंस यू हैव वीयू आपको मिल जाएगा. उसके बाद आप टाउ वी फाइंड करो, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस. नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू वीयू अपॉन BD. तो वीयू यहाँ पे आपको मिलेगा 101.52. सो 101.52 इंटू 10⁻³ डी आपको लेना है 1000. और डी आपको मैंने आगे भी आपको बताया था कि दिस इज 10, तो आप मैक्सिमम डी, मतलब ये भी डी है और ये भी डी है. टॉप का ये 0.2 भी डी है और दिस 0.45 इज ऑल्सो डी. तो आइदर यू कैन टेक एवरेज ऑफ दिस टू और यू कैन टेक द मैक्सिमम. तो हमने आगे जो लिया था, हमने मैक्सिमम लिया था. और स्मॉल डी की वैल्यू हमने आगे भी फाइंड की थी 400. So from this you will get tau v की value in Newton per mm square. Once you have tau v value from table number 19, you can find tau c value in Newton per mm square, and you need to check whether tau v is less than tau c or not. आपको ये चेक करना है tau v less than tau c आता है कि नहीं आता है. And if you are getting tau v less than tau c, then you need to provide stirrup. जो stirrup हम provide करते हैं shear reinforcement, that you don't require for the स्टेम डिजाइन. तो ये यहाँ पे ये कैलकुलेशन किया है दैट वी आर गेटिंग टाउ वी लेस देन टाउ सी, हेंस सेफ इन शेयर. शेयर में वो क्रैक नहीं होगा. दिस इज द अल्टीमेट कंक्लूजन फ्रॉम द शेयर डिजाइन, राइट. सो दिस वे यू कैन फाइंड द और you can design the stem reinforcement. Again I am repeating, design of stem. Very first you need to draw active pressure diagram, maximum pressure at the junction of stem and base length, so you can get the moment. From moment you can find area of steel and spacing from SP16. Once you have that, the next is to curtailment of bar. For the economy purpose you can do curtailment of bar throughout the length. Then after you need to extend your reinforcement from one member to other member by providing development length. Development calculation I have explained you. And then after last is the secondary steel. Secondary steel means this transverse reinforcement, and distribution steel also at the other side reinforcement. So you can provide, and this is the last check for shear. Maximum shear at this XX section, that is at the fixed point, and that will be your active resulted active pressure diagram, active pressure, and that you need to multiply with 1.5 partial safety factor. And then after normal calculation of tau v, tau c you can get from table number 90. You need to check whether tau v is less than tau c or not. So this is all about your design of stem.